Hello everyone, welcome to another session of animal tissue, and now in this video today we will discuss about muscular tissue. Study of muscles is known as myology. Muscular tissue is derived from mesoderm. As we have discussed earlier, epithelial tissue is derived from ectoderm. Connective tissue is derived from mesoderm. Muscular tissue is also derived from mesoderm, but there are two muscles which are ectodermal in origin, means they are derived from ectoderm. दो muscles कौन सी हैं? One is iris muscle and ciliary muscles. Both these are present in our eye. Iris is pigmented part of eye. जैसे किसी की भी eyes को देखकर हम बोलते हैं कि you have black eye, blue eye, green eye. So that pigmented part of eye is known as iris. Muscles of the iris are actually derived from ectoderm. And iris की muscles का function क्या रहेगा? They will control size of the pupil. Aperture in the iris is known as pupil और pupil का काम है amount of light regulate करना what can enter in our eye. जैसे bright light में जो pupil है वो constrict होगा और dim light में pupil dilate होगा. So muscles of the iris are ectodermal in origin. Ciliary muscles, these are again present in our eye. 10th में you might have studied one topic in physics, that is accommodation. Accommodation means ability of eye to adjust to see near and far object. नज़दीक और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारी आई में जो सेटिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन. सिलियरी मसल्स एक्चुअली क्या हैं? दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन कोरोइड लेयर ऑफ द आई और इनका फंक्शन क्या होगा कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आई बॉल की जो कैविटी है वो शॉर्टन हो जाती हैं. जो कोरोइड्स है वो आगे की तरफ आएंगी जिसकी वजह से suspensory ligament loosen and lens become thick and more convex. जब हमें नजदीकी ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है then ciliary muscles work. So muscles of the iris and ciliary muscles both are present in eye and they are ectodermal in origin. Now muscles show certain features. Muscles are having excitability. Excitability means when they get stimulus they are able to get excited. वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. फिलहाल के लिए इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे किसी कंडक्टिंग वायर में हम करंट अप्लाई करें तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर करंट जनरेट होगा और फिर वो करंट पूरी वायर में स्प्रेड हो जाता है. तो जनरेट होना उसको तो कहेंगे एक्साइटेबिलिटी. और उसके बाद जो करंट है दैट विल स्प्रेड ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ मसल और नर्व फाइबर and with the result they are able to contract. So muscles are excitability means after getting stimulus they will get excited, action potentially generated and with the result they are able to show contraction. और जितने भी अपने बॉडी की जो मूवमेंट्स है, स्केलेटल सिस्टम की जो मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट पोस्चर्स जो हम बना रहे हैं, मूवमेंट बॉडी का, लोकोमोशन, all these are just because of muscle contraction. One more feature of muscle is extensibility. Extensibility means during the process of muscle contraction they can be stretched. अपोजिट टू दिस इज इलास्टिसिटी, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो वापस वो अपने नॉर्मल लेंथ पर आ जाती है, दैट इज इलास्टिसिटी. अगर हम बॉडी में मसल का प्रपोर्शन की बात करें 40 to 50% ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड मसल आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर. Muscular tissue is made up of muscle fibers. These muscle fibers are of different type. Cylinder में भी इनकी जो shape है आगे की slides में हम पढ़ेंगे. They may be cylindrical, they may be spindle shaped, they may be uninucleate, they may be multinucleate. डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इनको. सो मस्कुलर टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर. सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल इज मसल फाइबर.
Connective tissue is having lot of extracellular matrix. Epithelial tissue may be very little extracellular matrix was there, but in case of muscle there is no extracellular matrix. So this is one more feature of muscular tissue. On the basis of function, muscles are of two type. अगर वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, we will call them voluntary. अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, involuntary. So voluntary muscles work according to person's will because they are having nerve innervation from central nervous system. जो voluntary muscles होती हैं उनमें nerve supply CNS से होती है, brain and spinal cord से होती है. So these are voluntary muscles. Example रहेगा जो skeletal और striated muscles हैं, they are voluntary muscles. Skeletal muscles are voluntary muscles. Involuntary muscles, they do not work according to our will. Automatic इनकी functioning है because they are having nervous supply from autonomic nervous system. Example रहेंगे smooth muscles and cardiac muscles. So on the basis of function, muscles are of two type, voluntary and involuntary. On the basis of appearance, again muscles are of two type. जिन muscles में alternating light and dark band है, they appear striated muscles. Striated muscles means they are having alternating light and dark band. Skeletal muscle and cardiac muscle will fall in this category. Striated muscles are skeletal and cardiac muscles, and the muscle which do not have any band, they appear smooth. So non-striated muscles are smooth muscles. On the basis of location, muscles are of three types: skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, and here we will discuss all these three types of muscle one by one in detail. First, we will discuss skeletal muscles. Skeletal muscles, in this slide you have to focus on shape of the muscle fiber. Skeletal muscle is a group of muscle fiber and these muscle fibers are cylindrical. ये देखिए, in this diagram there are four muscle fiber. Skeletal muscle is a group of muscle fiber. Skeletal muscle fiber are cylindrical. अगर हम compare करें cardiac and smooth muscle से, cardiac muscle is also having cylindrical muscle fiber. In case of smooth muscles, muscle fiber are spindle shaped. Spindle means बीच से wide है और pointed है end से. So skeletal muscles में skeletal muscle fiber are cylindrical in shape, having alternating light and dark band. That's why they are also known as striated muscles. Having multinucleated condition, ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस का जो नंबर है वो एक से ज़्यादा है. सो स्केलेटल मसल फाइबर आर मल्टीन्यूक्लिएटेड. अगर हम ओरिजिन की बात करें कि हाउ दीज मसल फाइबर आर ओरिजिनेटेड, सो इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन मायोब्लास्ट सेल्स आर देयर. Myoblast cell will fuse together to form single skeletal muscle fiber. So skeletal muscle fiber is formed by fusion of large number of myoblast cell in the embryonic stage, and that's why they have become multinucleated. And इस multinucleated condition के लिए हम term देंगे syncytium. Again very important term, skeletal muscle fiber is syncytium because it is multinucleated due to fusion of cell. So skeletal muscle fiber are cylindrical, having alternating light and dark band, multinucleated, and multinucleated condition is due to fusion of large number of myoblast cell, and this multinucleated condition is known as syncytium. If we talk about general features of skeletal muscles are striated, means they are having alternating light and dark band, that's why appear striated. They work according to our will because they are having nerve supply from central nervous system, that's why they are also known as voluntary muscles. These muscles are multinucleated and nucleus are located toward periphery. It is again very important. Skeletal muscle fiber are cylindrical, having alternating light and dark band, multinucleated, and nuclei are located toward periphery. And this multinucleated condition has developed due to fusion of cells
large number of myoblast cell in embryonic condition and multinucleated condition which arise due to fusion of myoblast cell is known as syncytium. अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फ्यूजन ऑफ सेल से डेवलप होती है तो उसको हम कहेंगे सिनसीटियम। एक और टर्म भी होता है जो फंजाई में होता है, दैट इज सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब होता है अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सेल के जो सेप्टा हैं, सेल वॉल है, उनके डिसोल्व होने से बने तो उनको हम कहेंगे सिनोसिटिक। हेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हैज डेवलप्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल। बहुत सारी सेल फ्यूज होकर एक स्केलेटल मसल फाइबर बनाएंगी, यही वजह है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड न्यूक्लियाई आर लोकेटेड टुवर्ड पेरिफेरी। These muscles are associated with skeleton. That's why they are known as skeletal muscle. Skeletal muscle को हम वॉलंटरी कहेंगे बिकॉज हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं। स्ट्रिएटेड कहेंगे बिकॉज इनमें अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड है। स्केलेटल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर अटैच्ड विद स्केलेटन। यहीं से आपको याद रखना है कि जहां पर भी अपने बॉडी का मूवमेंट है, लोकोमोशन है, पोस्चर को मेंटेन करना है, कौन सी मसल्स का एक्शन होगा? स्केलेटल मसल। इसके अलावा कुछ और एरियाज भी हैं हमारी बॉडी के जहां पर स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। जैसे हमने कहा वॉलंटरी है, अब वॉलंटरी मूवमेंट हमारी बॉडी में कहाँ है? टंग। जब हम बोलते हैं तो टंग का मूवमेंट है। सो टंग इज हैविंग skeletal muscle. Pharynx is also having skeletal muscle. Pharynx की जो muscles हैं they are involved in swallowing. तो अगर हम देखें skeletal muscle से कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है? मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग स्पीच, स्वेलोइंग ऑफ द फूड। फेरिंग्स की वॉल का भी अगेन मूवमेंट है, यूज है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड। अगर हम बात करें ओइसोफेगस की, सो बिगिनिंग ऑफ ओइसोफेगस इज ऑल्सो हैविंग प्योरली स्केलेटल मसल। कई बार कुछ ऐसा ईटेबल जो है आइटम हम ईट कर जाते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि वो नॉट टेस्टी नहीं है या हमने कुछ बाय मिस्टेकन गलत खा लिया है, तो आप उसको स्पिट आउट भी कर सकते हैं, वोमिट आउट भी कर सकते हैं। सो tongue, pharynx and beginning of oesophagus is also having skeletal muscle. So if we talk about function of skeletal muscle, movement different, जैसे hand का movement, leg का movement, head का movement, different movements. Second, locomotion, maintenance of postures of body, swallowing of the food, speech, all are function of skeletal muscles. So skeletal muscles are present in body wall and they are associated with skeleton. Now this is a skeleton muscle. कुछ टर्म हमने पहले पढ़ ली हैं, शायद एक टर्म हमने पहले पढ़ी है। See this. Muscle is attached with bone by dense regular connective tissue. Tendon is a dense regular connective tissue. Skeletal muscle is a group of muscle fiber. All muscle are group of muscle fiber. In the same way, skeletal muscle is a group of muscle fiber, but muscle fiber are themselves arranged in bundle. जैसे मान लीजिए आपने कुछ मैच स्टिक्स ली, 5, 7 वॉट एवर यू हैव टेकन, उन मैच स्टिक्स को आपने ब्लैक पेपर से रैप कर दिया और इस तरह आपने उनके 5-6 बंडल बनाए। अब जो 5-6 बंडल आपने बनाए हैं जिनके चारों तरफ ब्लैक पेपर है, उनको आपने एक रेड पेपर के अराउंड रैप कर दिया, उनके अराउंड आपने रेड पेपर रैप कर दिया, राइट। सो और एक मैचस्टिक के अराउंड जो है आपने येलो पेपर किया। जैसे यहाँ देखिए, कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। ये एक मैचस्टिक है तो यहाँ हमने येलो कलर ड्रॉ किया है। आई होप यू आर एबल टू सी। येलो थोड़ा लाइट हो गया है। इंडिविजुअल मसल फाइबर इज कवर्ड बाय येलो पेपर, या जो हमारी स्टिक है, और बहुत सारी मैच स्टिक्स हैं उनको हमने कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से। तो इस तरह हमने बंडल्स बना लिए। हर मैच स्टिक के बाहर येलो कवर है, बहुत सारी मैच स्टिक के बाहर ब्लैक कवर है, और सबसे बाहर पूरी मसल के बाहर हमने कैसा कवर दे दिया है? ग्रीन। थोड़ा ठीक लेते हैं, ये देखिए, ये हमने
ये देखिए ऐसे पूरी मसल के बाहर हमने कैसा कवर ले लिया है ये। यस, अब हमें 3 टर्म पढ़नी है। ए मसल इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ नोन एज एपिमाइशियम। दिस वन, पूरी मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ होगी उसको हम क्या कहेंगे? एपिमाइशियम और फेशिया। क्या कहेंगे? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कोलाजन फाइबर की बनी हुई है, FASCIA। होल ऑफ द मसल इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ नोन एज एपिमाइशियम। मसल बंडल, ये बंडल है मसल के। मसल बंडल इज ऑल्सो कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीथ नोन एज पेरीमाइशियम। इंडिविजुअल मसल फाइबर के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू शीथ है जिसे हम कहेंगे एंडोमाइशियम। सो आई होप इट इज क्लियर। मैचस्टिक हमारा मसल फाइबर है। मसल फाइबर के बाहर जो येलो लाइन है दैट इज एक्चुअली एंडोमाइशियम। मैचस्टिक के बंडल के बाहर ब्लैक पेपर रैप किया था दैट इज पेरीमाइशियम। और बहुत सारे जो ब्लैक पेपर के बंडल हैं उनके बाहर एक हमने ग्रीन लाइन मार्क की दैट इज एपिमाइशियम। So muscle is a group of muscle fiber and muscle fiber are arranged in bundle। तो हम कह सकते हैं muscle is a group of bundles of muscle fiber। मसल फाइबर के जो बंडल्स हैं उनके अराउंड प्रेजेंट है पेरीमाइशियम। इंडिविजुअल मसल फाइबर के अराउंड प्रेजेंट है एंडोमाइशियम and whole of the muscle is covered by epimysium। Another name for epimysium is fascia। मसल बंडल के लिए वर्ड हम यूज करेंगे fascicle। So a skeletal muscle is having large number of muscle bundle or fascicle। Tendon is a connective tissue which attach muscle to bone। Now property of regeneration in skeletal muscles। अगर हम बात करें regeneration की, सपोज ए पर्सन गॉट इंजर्ड और एक्सीडेंट के दौरान जो मसल्स हैं बॉडी वॉल की वो डैमेज हो गई हैं, क्या होगा? अपने आप कुछ टाइम बाद जो मसल्स हैं दे आर एबल टू रीजनरेट। दूसरा, अगर हम देखें एक्सरसाइज के दौरान भी मसल फाइबर्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। मसल इज ए ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। साइज 2 तरीके से बढ़ सकता है, या तो सेल का नंबर ज्यादा हो या सेल का साइज बड़ा हो। मसल के केस में अगर हम देखें मसल का साइज सेल के साइज बढ़ने की वजह से होगा। देयर इज इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल फाइबर। अगर हम बच्चे से अगर ग्रोथ की बात करें, बच्चे से बड़े हो रहे हैं, इस दौरान भी साइज ऑफ मसल इज इंक्रीजिंग। तीनों टॉपिक हम एक ही साथ डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ साइज ऑफ मसल इंक्रीज और हाउ रीजनरेशन इन स्केलेटल मसल्स टेक्स प्लेस। दिस इज ए स्केलेटल मसल फाइबर। देखो स्केलेटल मसल फाइबर कैसे कहा? सिलिंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियाई पेरिफेरी पर है। इन स्केलेटल मसल्स के पेरिफेरी पर यहाँ पर सैटेलाइट सेल्स होती हैं। सैटेलाइट सेल्स आर एक्चुअली क्वीसेंट सेल। क्वीसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। नॉर्मल कंडीशन में दीज सेल्स विल नॉट डिवाइड एंड विल नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जैसे एक्सीडेंट हो गया उस दौरान जो सैटेलाइट सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी सैटेलाइट सेल्स एक्टिवेट होंगी। What will be the function? इनका जो काम है वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ देखिए, इफ यू आर हैविंग इंजरी, यहाँ से मसल फाइबर इंजर्ड हो गया है, दीज सैटेलाइट सेल्स आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। नाउ दीज सैटेलाइट सेल्स विल डिवाइड, proliferate and they got fused with cell। They got fused with cell। और देखो सेल में फ्यूजन की वजह से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या हो गया है? ज्यादा। एंड अगेन मसल विल रिज्यूम द सेम शेप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियस? सेल के अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो न्यूक्लियस की डायरेक्शन पे होगा। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ही फास्ट प्रोटीन सिंथेसिस होगा। मसल इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन
जैसे मायोसिन है, एक्टिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है। सो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल प्रोटीन की कंटेंट पे डिपेंड होती है। तो एक्सरसाइज के दौरान अगर मसल का साइज बढ़ता है तो उसमें भी क्या रिजल्ट रहेगा, मसल का जो साइज इंक्रीज होगा, दैट इज हाइपरट्रॉफी, दैट takes place with the result of increase in number of protein, amount of protein. So what happened, these satellite cells are quiescent cell, inactive cells, but they have ability to divide. Muscle fibers, जो skeletal muscle fiber हैं, they are specialized cell, they are differentiated cell and they do not have ability to divide. स्केलिटल मसल फाइबर कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, बट ये रीजनरेट कर पा रहा है किसकी वजह से, क्वीसेंट सेल की वजह से। इंजरी के दौरान जो क्वीसेंट सेल हैं इनको मैसेज मिलेगा, दे विल स्टार्ट डिवीजन, प्रोलिफरेशन, और कुछ जो सेल्स हैं वो फ्यूज होकर स्केलेटल मसल फाइबर, जो इंजर्ड स्केलेटल मसल फाइबर है उसके साथ फ्यूज हो जाएंगी और वापिस ये फिर सो मसल जैसे पहले जैसी हो गई है। देखो, सो इंजरी के दौरान जो स्केलेटल मसल का रीजनरेशन होगा उसमें कौन सी सेल्स हेल्प करेंगी, सैटेलाइट और क्वीसेंट सेल्स। Second type of muscle is smooth muscle. As the name indicate, these muscles do not have alternating light and dark band. इसलिए हम इन्हें कहेंगे non-striated muscles. They are involuntary in actions. They do not work according to our will. Automatic action है इनका, because इनमें जो nerve innervation है वो autonomic nervous system से है। Muscle fiber यहाँ पर spindle shaped है, ये देखिए, स्मूथ मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप्ड। कंपेयर करना है, स्केलेटल मसल फाइबर आर सिलिंड्रिकल, स्मूथ मसल फाइबर आर स्पिंडल शेप्ड। स्केलेटल मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्मूथ मसल फाइबर आर यूनी न्यूक्लिएटेड। इनकी जो शेप है दैट इज स्पिंडल शेप और फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म वर्ड भी यूज करना है। मोनोन्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस इज लोकेटेड सेंट्रली। कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। कहाँ प्रेजेंट है, वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आई, मसल्स ऑफ द आयरिस, सिलियरी मसल्स, हेयर, बॉडी के अंदर जो बॉडी वॉल में जो हेयर्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो मसल्स होती हैं, इरेक्टर पिलाई, जो हेयर्स को खड़ा रखने के लिए डर के मारे या ठंड के समय जो हेयर्स हैं वो स्टैंड आउट हो जाते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो स्मूथ मसल्स आर लोकेटेड इन वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अब होलो ऑर्गन्स हार्ट को छोड़कर सब जगह प्रेजेंट होंगी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, सो मैनी जो हैं एग्जाम्पल्स आर देयर। आपको मेन एग्जाम्पल लर्न करना है, बाकी नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सो दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे स्टमक की वॉल है, इंटेस्टाइन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यूरेटर है, यूट्रस है, इनकी वॉल में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स। If we talk about type of the smooth muscles are of two type, multi-unit and single unit. As the name indicate, single unit मतलब मिलकर वो एक यूनिट की तरह काम करेंगी, मल्टी यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं। क्या डिफरेंस रहेगा, in single unit smooth muscles, all the muscle fibers are joined together by gap junctions. गैप जंक्शंस ज्यादातर एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, बट हमने वहां पर भी डिस्कस किया था, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में जो मसल फाइबर्स हैं दे आर अटैच्ड टुगेदर बाय गैप जंक्शंस एंड टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शन का फंक्शन रहेगा उन मसल फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करके रखना, और गैप जंक्शन का फंक्शन रहेगा कि इंपल्स को, जो भी स्टिमुलस इस मसल को मिला है, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और इसको एक सेल से दूसरे सेल में भेजना। जो इंपल्स है दैट इज मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल,
with the help of gap junctions. अब जब impulse travel कर सकती है, wave of contraction gap junctions के थ्रू travel कर सकती है, यही वजह है कि इनमें जो nerve supply होगा वो scanty होगा, पुअर नर्व सप्लाई है, बिकॉज इनको बार बार सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर सिंगल यूनिट. सो इन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर आर प्लेस्ड टुगेदर एंड दे आर कनेक्टेड बाय गैप जंक्शंस. गैप जंक्शन से क्या होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली मूव फ्रॉम वन मसल फाइबर टू another muscle fiber. That's why they do not need more nerve supply. In comparison to this, see multi-unit smooth muscles. Here muscle fibers are placed separately and all these muscle fibers are having nerve supply. So in multi-unit smooth muscles, different units are there, muscles will work in different units and they are having more nerve supply. Example की बात करें, होलो ऑर्गन्स की वॉल में आपको क्या मिलेगा, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल. हेयर हैं या आयरिस है, सिलियरी मसल्स हैं, वहां पर आपको कौन सी मसल्स मिलेंगी, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स. एग्जाम्पल फिर से हमने कुछ लिखे हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, एलिमेंट्री कैनाल एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड. यहाँ पर ध्यान रहे ओइसोफेगस से स्टार्ट होगा. ओइसोफेगस में भी अगर हम देखें, शुरू के 1/3 पार्ट में स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, बीच के 1/3 पार्ट में स्ट्रिएटेड और स्मूथ दोनों हैं, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस से लेकर एनस तक कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं. डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड, जितनी भी तरह की डक्ट्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट्स हैं, पैनक्रियाज हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं. सो डक्ट्स ऑफ ऑल ग्लैंड्स आर हैविंग स्मूथ मसल्स. ब्लड वेसल्स की वॉल है, कैपिलरीज को छोड़कर, कैपिलरी की वॉल में एंडोथेलियम है, आर्टरीज और वेन्स की वॉल में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स. डायाफ्राम, डायाफ्राम लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एंड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग मूवमेंट. जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो डायाफ्राम एंड रिब्स की वजह से है. सो डायाफ्राम की मसल्स को हम कहेंगे फ्रेनिक मसल्स. दिस इज अगेन ए स्मूथ मसल्स. एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, कोस्टा वर्ड इज यूज्ड फॉर रिब्स. तो रिब्स से जो मसल्स एसोसिएटेड होती हैं, दो टाइप की हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, internal intercostal muscle. These muscles play very important role in breathing. Respiratory system में हम इनके functions पढ़ेंगे. So these are also smooth muscles. यहाँ से आपको function भी याद होने चाहिए. Movement of food in the alimentary canal is peristalsis. किसका function है, smooth muscles का. Flow of blood in the blood vessels, again smooth muscles का. Respiratory movements are again due to smooth muscles. Respiratory tract, entry and exit of the air. यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, सब में कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स. यानी कि पासिंग आउट ऑफ द यूरिन होगा वो भी किसकी वजह से होगा, स्मूथ मसल्स की वजह से. यूट्रस, यूट्रस में भी कौन सी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स. इट मींस जो लेबर पेन है, पार्चरीशन है, पार्चरीशन मींस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, कौन सी मसल्स का रोल है, स्मूथ मसल्स का. तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट कि जहां प्रेजेंट है वहां उनके कौन से फंक्शंस हैं. स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप फिजियो के चैप्टर्स पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट दिस. बट आपको एग्जांपल हमने इसलिए लिए हैं यहाँ पर ताकि आप कोरिलेट कर पाए कि यस दीज आर फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स. रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट है. एरेक्टर पिल्लाई मसल्स ऑफ द हेयर, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन स्किन एंड दे आर एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल और हेयर की स्टैंडिंग में हेल्प करेंगे. डर के मारे या ठंड की वजह से जो इरेक्टर पिल्लाई मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड हेल्प इन स्टैंडिंग आउट ऑफ द हेयर. सिलियरी मसल्स एंड आइरिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दे आर प्रेजेंट इन आई एंड दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स. One more criteria of defining smooth muscle is based on their arrangement within the wall of organs. Circular and longitudinal. If they are arranged lengthwise, this line, this is longitudinal, and if they are arranged in circle, this is circular muscle. If we talk about alimentary canal, there are longitudinal muscles as well as
सर्कुलर मसल्स। ये पॉइंट हमने थोड़ा सा टच किया था अर्थवर्म में, उसको आज हम थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अर्थवर्म मूव कैसे करता है। इन द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर देयर एंड दे विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म। इसी तरह हमारी एलिमेंट्री कैनाल में लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स आर देयर, दे विल हेल्प इन पेरिस्टेल्सिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड हैं तो दे आर सर्कुलर, लेंथ वाइज अरेंज्ड हैं दे आर longitudinal muscles. Peristalsis. Peristalsis is movement of food in the alimentary canal. Not only movement of food in the alimentary canal, this process takes place in different ducts also. जैसे ब्लड वेसल्स हैं या रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, वहां पर भी पेरिस्टेल्सिस होगा। पेरिस्टेल्सिस इज ए इनवोलेंट्री एक्टिविटी। हाउ डज इट टेक्स प्लेस? सबसे पहले आप 2 पॉइंट लर्न करने की कोशिश करेंगे कि पेरिस्टेल्सिस में 2 टाइप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। स्मूथ मसल्स ही हैं, अरेंजमेंट के बेस पे 2 टाइप की हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। व्हेन सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स करेंगी। जब लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सर्कुलर रिलैक्स करेंगी। क्लियर? दूसरा, जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है, ये सर्कल में प्रेजेंट है। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल का जो डायामीटर है वो कम होगा। जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी और थिक होगी और उसका जो ल्यूमन है वो क्या होगा? वाइड। सो सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने पर एलिमेंट्री कैनाल का जो साइज है वो कम होगा। व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल बिकम वाइडर। अब हम देखेंगे ये काम कैसे करेंगे। ये देखिए, दिस इज फूड, इसे हम कह रहे हैं बोलस। बोलस के जस्ट ऊपर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ल्यूमन विल बिकम नैरो और जो फूड है वो मूव करके किधर आ जाएगा? नीचे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स मेक द गट वॉल टू कंस्ट्रिक्ट एंड फूड इज स्क्वीज्ड into this next portion. इस एरिया की लॉन्गिट्यूडिनल मसल उसी टाइम जब यहाँ की सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसी दौरान यहाँ की लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? वाइड, और जो फूड मूव करके आगे आया है वो अकोमोडेट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? इस एरिया की, ये 1 मिनट में एक और डायग्राम, इसे नेक्स्ट स्टेप हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, ये फूड है। यस, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? मसल्स ऑफ दिस एरिया, यहां पर अभी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स वर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्कुलर मसल्स वर रिलैक्सिंग, बट जैसे ही फूड का मूवमेंट हुआ क्या होगा? हेयर longitudinal muscles will relax and circular muscle will contract. जैसे ही सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एरिया स्क्वीज होगा और जो फूड है वो मूव करके किधर आ जाएगा? इधर। उसी वक्त जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं सर्कुलर मसल, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये मसल्स एक पर्टिकुलर एरिया में देखें तो सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स करेंगी एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। दूसरा, जब इस एरिया में सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आगे कौन सी करेंगी? लॉन्गिट्यूडिनल। So this is how peristalsis takes place. So peristalsis is a involuntary activity and there is a role of smooth muscles which are arranged in 2 pattern, circular and longitudinal. Cardiac muscle. Cardiac muscle is present in wall of the heart. हार्ट की जो वॉल है मायोकार्डियम, दिस मायोकार्डियम इज हैविंग कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स की कुछ फीचर स्केलेटल मसल फाइबर को रिजेंबल करेंगे एंड सम ऑफ द फीचर रिजेंबल विद स्मूथ मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर आर सिलिंड्रिकल इन शेप। अब ये देखिए, यहाँ जो ब्लू लाइन है ना, यहाँ से नेक्स्ट ब्लू लाइन तक एक मसल फाइबर है। कार्डियक मसल फाइबर आर सिलिंड्रिकल जस्ट लाइक स्केलेटल मसल फाइबर, बट
दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, जबकि स्केलेटल मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और न्यूक्लियस पेरिफ्री पर प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। शेप स्केलेटल मसल फाइबर के जैसी है, सिलिंड्रिकल, न्यूक्लियस स्मूथ मसल फाइबर के जैसा है, एक है सेंटर में प्रेजेंट है। दूसरा यूनिक फीचर, ये जो स्केलेटल कार्डियक मसल फाइबर है दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल, जैसे एक ये स्केलेटल मसल फाइबर है, इसके आगे एक और है, इसके आगे एक और है। स्केलेटल मसल फाइबर में ऐसा नहीं होता, सभी मसल फाइबर बंडल में प्रेजेंट है लेकिन टेल टू टेल नहीं है। जैसे मैच स्टिक का आप एक ग्रुप बना ले, दैट इज स्केलेटल मसल। यहाँ पर क्या है कि एक आपने मैच स्टिक रखी, उसके बाद उसके पीछे एक और रखी, उसके पीछे एक और उन दोनों को आपस में आपने जोड़ दिया, दैट इज कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर आर प्लेस्ड एंड टू एंड, लेटरली भी वो आपस में कनेक्टेड होती है। ये इनमें एक खास बात है कि दे आर हैविंग ब्रांच सिस्टम। यहां पर ये देखो ब्रांचिंग, राइट। अब जो मसल फाइबर है दैट इज ए सेल, मसल फाइबर की सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन भी होगी। मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर को हम कहते हैं सार्कोलीमा। मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलीमा। सो व्हाट इज दिस ब्लू लाइन एक्चुअली? इस मसल फाइबर की सार्कोलीमा एंड एडजेसेंट मसल फाइबर की सार्कोलीमा दोनों आपस में क्या हो गई है? फ्यूज्ड टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क सिर्फ आपको कहां मिलेगा? कार्डियक मसल फाइबर में। सो व्हाट इज इंटरकैलेटेड डिस्क? Fused sarcolemma of adjacent muscle fiber is known as intercalated disc, and this intercalated disc is having tight junctions जो इन fibers को होल्ड करके रखेंगे, एंड इज ऑल्सो हैविंग गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस का काम है कि अगर मान लीजिए इंपल्स यहां पर है तो वो गैप जंक्शंस के थ्रू यहां चली जाएगी, ये देखो ऐसे। और जो ब्रांच्ड पैटर्न है, ब्रांच्ड पैटर्न के थ्रू इधर आ जाएगी, यहां से फिर इधर, फिर इधर। सो कार्डियक मसल में कॉन्ट्रैक्शन का अगर हम देखें फीचर्स, सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करेगी। अगर आपने 10th में पढ़ा हो कि जो हार्ट है उसमें एसए नोड प्रेजेंट होता है, एसए नोड इज ए स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर है, कार्डियक मसल फाइबर ही है विच इज हैविंग एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एसए नोड से स्टार्ट होकर पूरे हार्ट में स्प्रेड कर जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कार्डियक मसल बिकॉज these muscle fibers are joined together by intercalated disc as well as they are having branching pattern also. Oblique bridges है यहाँ पर जिनसे ये branching pattern show करती हैं। So benefit क्या होगा? If wave of contraction is developed at one point, अगर wave of contraction यहाँ originate हुआ है, intercalated disc and branching pattern के through ये पूरी muscle fiber में spread कर जाएगा, with the result it will contract as a unit. कार्डियक मसल्स का काम क्या है? हार्ट की वॉल में प्रेजेंट है, तो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है that is due to cardiac muscle and is responsible for circulation of blood throughout the body, and you know blood playing very important role in our body. So if we talk about the features of cardiac muscles, they are having alternating light and dark band just like cardiac muscle, but ये जो band है वो ज़्यादा distinct नहीं है, clearly visible नहीं है, faint dark light and dark band are there. So they are striated because they are having alternating light and dark band arranged in irregular mass, जैसे हमने शो किया है। टेल टू टेल प्रेजेंट है, ब्रांचिंग पैटर्न भी है, involuntary हैं, they are having nerve supply from autonomic nervous system, characterized by presence of intercalated disc and branched pattern that we have discussed. Central nucleus है, ये स्मूथ मसल फाइबर के जैसा है, सिलिंड्रिकल मसल फाइबर है वो स्केलेटल के जैसा है, और एक्शन हमने बता ही दिया है, दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द हार्ट, एंड जो मेजर आर्टरीज है जैसे आयोर्टा है या वेन्स है उनकी वॉल में भी, सुपीरियर वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा है, उनकी वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज ब्लड वेसल्स की वॉल में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। लेट्स हैव ए लुक एट इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ये देखिए, दिस इज वन मसल फाइबर, दिस इज अनदर मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर की बात कर रहे हैं। बोथ द एडजेसेंट मसल फाइबर आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अडेयरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम्स। ये देखिए दोनों मसल फाइबर को आपस में ज्वाइन करके रखेगा, और ये यहाँ पर गैप जंक्शंस हैं जो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन मसल फाइबर टू अनदर। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका साइज डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए दिस मसल फाइबर इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इसका साइज डिक्रीज होगा, इसका भी। तो यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स होगा, तो जिसकी वजह से दोनों फाइबर क्या हो सकते हैं? सेपरेट, बट होंगे नहीं।
इंटरकैलेटेड डिस्क मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सभी फाइबर्स को आपस में जोड़कर रखेगा, होल्ड टुगेदर ऑल द फाइबर्स। एंड सेकेंडली गैप जंक्शंस की वजह से impulse is transmitted from one muscle fiber to another muscle fiber. So this is peculiar feature of cardiac muscle fiber. If we compare all the three muscles, almost all point we have studied. एक बार फिर recapitulate करेंगे. Skeletal muscle fiber, अगर हम skeletal muscle में muscle fiber की बात करें, they are cylindrical in shape. Cardiac are also cylindrical. Smooth are spindle or fusiformed. Skeletal muscle fiber multinucleated है, nuclei lie at periphery. Cardiac muscle fiber uninucleate and nuclei lie in the center. Smooth muscle fiber uninucleate है, nuclei lie in the center. Skeletal muscle fiber voluntary है, cardiac and smooth muscle fiber are involuntary. Skeletal and cardiac striated है, जबकि smooth muscles हैं non-striated है. Skeletal muscle fiber are attached with the skeleton. Cardiac heart में present होंगे and smooth muscle fibers are present in wall of the hollow organs. एंड इरेक्टर पिल्लाई मसल्स ऑफ द हेयर एंड आइरिस के अंदर प्रेजेंट हैं और सिलियरी मसल्स जो हैं वो भी स्मूथ मसल्स हैं. सेंसिटिव टू फैटीग, ये नया पॉइंट है. सेंसिटिव फैटीग का मतलब होता है थक जाना. जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं तेज स्पीड से तो थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे, वो स्टेमिना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. सो फैटीगनेस जो है मसल्स का वो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से है. स्केलेटल मसल रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी फास्ट बट दे सून गेट फैटीग्ड. कार्डियक मसल नो डाउट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज फास्ट, हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम पर मिनट बीट कर रहा है, बट दे नेवर गेट फैटीग्ड. स्मूथ मसल्स जो हैं दे आर ऑल्सो हैविंग दे आर हैविंग स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बट जनरली दे डू नॉट गेट फैटीग्ड. सो दीज आर फीचर्स ऑफ द स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. एक और पॉइंट भी देखें, स्केलेटल मसल में नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा होगी. मैक्सिमम नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है. कार्डियक मसल में नर्व सप्लाई कम है. और स्मूथ मसल में अगर हम देखें, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में नर्व सप्लाई ज्यादा है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल में नर्व सप्लाई कम है. लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा कहाँ है? स्केलेटल मसल में. स्ट्रक्चर रिकॉल करेंगे, स्केलेटल मसल इज ए ग्रुप ऑफ मसल फाइबर. मैचस्टिक के बंडल को हम कहेंगे स्केलेटल मसल. हर मैचस्टिक को नर्व कनेक्शन चाहिए, हर मसल फाइबर को नर्व सप्लाई चाहिए. मसल फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन दे गेट स्टिमुलस बिकॉज मसल फाइबर आपस में गैप जंक्शन से नहीं जुड़े हुए हैं. सो इंडिविजुअल मसल फाइबर नीड नर्व सप्लाई. कार्डियक मसल में हमने पढ़ा फाइबर्स एंड टू एंड प्रेजेंट है, टेल टू टेल प्रेजेंट है, लेटरली भी वो आपस में कनेक्टेड है. तो इंपल्स एक पॉइंट पर जनरेट होकर पूरे एरिया में फैल जाती है, इसलिए इनको नर्व सप्लाई की जरूरत कम है. जबकि नॉर्मल हार्ट बीट अगर हम आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल हार्ट बीट के लिए नर्व कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है. अपना हार्ट जो है वो ऑटो रिदमिसिटी शो करता है एसए नोड की वजह से. इसे हम और डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे. स्मूथ मसल्स में देखें तो नर्व सप्लाई कम है. रीजनरेशन की अगर हम बात करें, हमने स्केलेटल मसल रीजनरेशन पढ़ा है. कौन सी सेल्स की वजह से स्केलेटल मसल रीजनरेट करती है? सैटेलाइट सेल्स की वजह से. कार्डियक मसल्स में रीजनरेशन की एबिलिटी कम है. सबसे ज्यादा रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो स्मूथ मसल्स में होती है. स्मूथ मसल्स में जो मसल फाइबर्स हैं दे आर नॉट फुल्ली डिफरेंशिएटेड. व्हाट डज इट मीन? ये जरूरत पड़ने पर जो स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं दे विल बिकम अनडिफरेंशिएटेड एंड स्टार्ट डिवीजन. तो ये खुद डिवाइड करके रीजनरेट हो जाते हैं. कार्डियक मसल्स कैन नॉट रीजनरेट. स्केलेटल मसल रीजनरेट टू सम एक्सटेंट. इंजरी के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रीजनरेशन. किसकी वजह से? सैटेलाइट सेल की वजह से. तो यहाँ पर फोकस करना है कि स्केलेटल मसल फाइबर आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड सेल. दे कैन नॉट रिगेन पावर ऑफ डिवीजन. स्मूथ मसल्स में नो डाउट दे आर डिफरेंशिएटेड बट जरूरत पड़ने पर वो अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट डिवीजन एंड रीजनरेट द सेल. तो यहाँ पर कोई अलग से सैटेलाइट या क्विसेंट सेल की जरूरत नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. Here we will discuss two terms related with muscles. मसल्स एक बोन से दो पॉइंट पर अटैच होती हैं. एक पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन और दूसरे को कहेंगे इंसर्जन. आपके सामने जो डायग्राम है उसको अपनी बॉडी में कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे. ये शोल्डर बोन है और ये हमारी फोर लिम्ब है.
दिस इज, और ये यहाँ पर आपकी अपर आर्म है, ये नी ज्वाइंट है, आप यहां से समझो, ये नी ज्वाइंट है तो ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। अब इस अपर आर्म में बोन जो है ये आपको लर्न भी करना है, बुक में एग्जांपल भी गिवन है, बाइसेप, ये बाइसेप है और नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है ट्राइसेप। बाइसेप एंड ट्राइसेप स्केलेटल मसल का एग्जांपल है विच इज प्रेजेंट इन अपर आर्म। अब बाइसेप्स का कोई भी मसल होगी जब वो बोन के साथ जुड़ी हुई है तो 2 पॉइंट पर जुड़ी है, एक ओरिजन है और एक इंसर्जन। कैसे याद रखेंगे कि इंसर्शन क्या है और ओरिजन क्या है? मोर मूवेबल पार्ट इंसर्जन कहलाएगा। अगर आप यहां देखो तो शोल्डर ज्वाइंट के कंपैरिजन में ये जो ज्वाइंट है ये ज्यादा मूवेबल है, मोर मूवेबल। दोनों अटैचमेंट में से जो पार्ट मोर मूवेबल होगा उसको हम कहेंगे इंसर्जन, और जो लेस मूवेबल पार्ट है उसको हम कहेंगे ओरिजन। कैसे पहचानेंगे कि मसल में ओरिजन का इंसर्जन? एक तो हमने मूवमेंट से बताया, दूसरा 2 पार्ट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल। P फॉर पास, D फॉर दूर। बॉडी एक्सिस के जो पार्ट पास होगा उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल और जो दूर होगा डिस्टल। तो अब आपने लिम्ब को एक्सटेंड करके देखिए, बॉडी के साथ आपका शोल्डर जो ज्वाइंट है वो ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू नी, तो जो नी ज्वाइंट है वो डिस्टल अटैचमेंट होगा और जो शोल्डर ज्वाइंट है वो प्रॉक्सिमल। सो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट पे आपको क्या मिलेगा? ओरिजन, और डिस्टल अटैचमेंट पे आपको क्या मिलेगा? इंसर्शन। बाइसेप की बात करें, बाइसेप इज फ्लेक्सर मसल ऑफ अवर बॉडी। जनरली मसल्स एक्ट इन एंटागोनिस्टिक मैनर, अपोजिट मैनर में काम करेगी। आप अपने हाथ को सीधा रखिए, नी ज्वाइंट से उसको बेंड करिए, इसको मैं कह रही हूं फ्लेक्सिंग, फ्लेक्सर मसल्स। बाइसेप का काम होता है लोअर आर्म को अपर आर्म पे बेंड करना, यानी कि नी ज्वाइंट से जब आप हाथ को फोल्ड कर रहे हैं, लिम्ब को फोल्ड कर रहे हैं, तो वो कौन सी मसल का फंक्शन होगा? बाइसेप का। लेकिन जब आप लिम्ब को सीधा करेंगे तो वो ट्राइसेप का काम है। तो ट्राइसेप एक्सटेंशन मसल है, बाइसेप फ्लेक्सर मसल है। बाइसेप इज फ्लेक्सर मसल ऑफ द अपर आर्म and tricep is extension muscle of lower arm. So this is bicep and tricep. लगातार जो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डंबल्स को लिफ्ट करते हैं और उनको लिम्ब को बेंड करते हैं और स्ट्रेट करते हैं, तो आपके जो बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और क्लियरली विजिबल होंगे। So that's all from my side about the muscular tissue. I hope you all like the lecture. In case you are having any doubt in understanding or you want any modification in lecture, your feedback are always welcome. Thank you for watching the video and have a nice day.